Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Simple Concepts. We'll be discussing about the economic and financial affairs and also about some general awareness topics which would be helpful in your UPSC, RBI Grade B and SEBI Grade A examination. So we'll be starting with the articles of November month. उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट अन अकेडमी हैज़ कम अप विथ अन अकेडमी कॉम्बैक्ट चैलेंज in which you would be having a quiz based on the course that you are taking on an academy. जैसे कि अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन जो आपकी क्विज़ होगी वो बैंक एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. And if you are preparing for some other exam like UPSC, then the questions would be based on the course for what you are preparing. Now, what is the use of this particular challenge? आपको क्यों ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए जो अन अकेडमी इज़ थ्रोइंग एट यू? फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट आपने जितनी भी तैयारी की है आप अपने आप को जज कर पाएंगे, आप एनालाइज कर पाएंगे दैट हाउ मच यू हैव लर्न. And also if you haven't been learning for this for a while, तो आप ये भी पता कर पाएंगे that what exactly is the pattern, what kind of questions are asked. सपोज इफ़ यू आर अ न्यू लर्नर तो आपको अगर आइडिया नहीं है तो उनके लिए भी दिस इज़ this is useful. So when you will take this test you would be able to secure top ranks. If you would be able to secure top ranks then you can win exciting prizes from an academy. ओके, सो यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर इट नाउ. आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक कोड यूज़ करना पड़ेगा SC10 और उस कोड को यूज़ करके आप फ्री में रजिस्ट्रेशन इसको कर सकते हैं. ओके, एंड यू वुड बी एबल टू टेक द टेस्ट. Now let's come to the other points. So this is Ruhi ma'am. She is an educator on an academy where she takes the comprehensive courses for SEBI Grade A, RBI Grade B examinations. Okay, so as you know that she is an educator on an academy plus, that means that you would need subscription for getting to her courses. तो उनके सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अन अकेडमी पे SC10 एक रेफरल कोड यूज़ करना है. ओके, सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. Okay, so you can go for the subscription on an academy and then you can use the code SC10, and by using that code you would be able to get 10% off. Okay, so you should go for the enrollment process right now only. These are the courses which are taken by her, like the RBI Grade B Phase 2 examination, SEBI Grade A Paper 2 examination, banking, financial, economic awareness, current affairs for all kinds of bank exams. Okay, she'll be also teaching you the insurance awareness for all insurance examinations. So these are the courses which she's taking on an academy and you can access her courses. For that you need to get a subscription on an academy, and do not forget to use the code SC10 for getting a discount of 10%. Also this code is applicable wherever an academy asks you for any invite code. Okay, whenever you want to access any free content which is available over there, like the videos, PDFs and mock tests, whenever they ask you for any invite code you just have to type SC10 and you would be able to access the content freely. So this is the channel that you can join for getting the updates on the upcoming examinations, the courses, the videos, and also all kind of study material would be provided on this Telegram channel. So we'll be starting with the articles now. जो आपका ECI है, okay, Election Commission of India. So let's understand that, first of all let's understand that what is ECI. Okay, so हम ECI को सबसे पहले समझते हैं क्योंकि उसको समझना ज़रूरी है. अब पहला क्वेश्चन जो आता है ECI से रिलेटेड, वो पहला क्वेश्चन ये आता है, इज़ इट एन ऑटोनमस बॉडी? So this is my first question, that ECI is an autonomous body or not? Okay, so answer here is that yes, it is an autonomous body. Yes, it is an autonomous body. It is a constitutional body. Okay, so this is the second point regarding it, that it is a constitutional body, it is an autonomous body. क्या ये जो बॉडी है
ओके, तो ये बॉडी सिर्फ नेशनल लेवल पर आपको पता है ना कि इसका काम क्या है, तो इज़ इट ओनली फॉर नेशनल लेवल और ऑल्सो फॉर स्टेट लेवल? सो आंसर हियर इज दैट इट इज़ फॉर both of them. Okay, so both of them. Now the point here is that, अब चलिए इसको समझ लेते हैं। जो आपका ECI है, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड जो आपका ECI है, ओके, द ECI हियर इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यू गेट दैट। तो ECI जो है ये अब आपका आया कब था? हमने डिस्कस किया है दैट कि एक ऑटोनमस बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि आपका 1950 में इसको लाया गया। ओके, इससे पहले इसको 1950 में लाया गया। क्यों लाया गया? आपके जितने भी इलेक्शन प्रोसेसेस होते हैं, ओके, द इलेक्शन प्रोसेसेस, चाहे वो आपका नेशनल लेवल पर हो या फिर स्टेट लेवल पर हो, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाए रखने के लिए आपका दिस ECI, दिस वर्क्स। ओके, ECI वर्क्स फॉर हैंडलिंग, फॉर एडमिनिस्टरिंग द इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया, आपके नेशनल और स्टेट लेवल पर। अब इसका जो आर्टिकल है जिसके अंडर इसको लेकर आए हैं, द आर्टिकल्स नेम इज, देखिए मैंने आपको बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो इसको आर्टिकल 324 के अंडर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स, ओके, दिस इज पीपल एक्ट, ठीक है, जिसके अंडर आपके जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया आपका, ओके, सो दीज आर सम अदर बॉडीज जो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर ही लाए गए थे। ओके, सो अदर पॉइंट हियर इज दैट, क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, क्या आप लोगों को पता है दैट ECI, ओके, क्या ये गवर्नमेंट के अंडर काम करता है? लाइक व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज इट? सो इट इज समथिंग लाइक योर जुडिशरी, लाइक योर UPSC, ओके, लाइक योर CAG। इनके जो आप फंक्शंस है वो अच्छे से जानते हैं। फंक्शंस के साथ साथ इनके ऊपर किन किन की पावर एक्सरसाइज करती है वो आपको समझना है। CAG जो है आपका वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को, ठीक है, डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो गवर्नमेंट में ये देखता है, जिस भी कोई भी सरकार हो उसमें ये देखता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो करप्शन ना कर रही हो, उसके जितने भी काम हैं वो ट्रांसपेरेंटली किए जा रहे हो। और आपका जो UPSC है वो आपके ब्यूरोक्रेट्स को देखता है, ओके, आपके सारे ब्यूरोक्रेट्स को देखता है। और जुडिशरी आपको पता ही है, इट्स अ हायर पावर। ओके, सो दिस इज़ अबाउट ECI। आई होप you have understand what is ECI। अब उसने क्या किया है, इट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम। तो ये जो इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम है इसको ECI ने अभी ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसको हम IEVP बोल रहे हैं। अब इसको किस लिए किया है? फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़, ओके, और ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। जो आपके बिहार में असेंबली इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे जो फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए आपकी IEVP को ऑर्गेनाइज किया गया था। डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, okay, which is International IDEA, International Foundation of Electoral Systems, and associations of, world election bodies AWEB have been invited to participate in AEVP। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको IEVP में बुलाया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, इट वॉज टू प्रोवाइड यूनिक ओवरव्यू ऑफ सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन,
ओके, जो वोटर्स एजुकेशन है और जो आपका इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, ओके, उसको किस तरीके से और ज़्यादा सिस्टमेटिक बनाया जा सकता है, और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो वोटर्स हैं उनको किस तरीके से और एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर मोर एफिशिएंट दिस इलेक्शंस। ओके, तो बैकग्राउंड क्या है आपका, ये जो प्रोग्राम है, द प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. Currently, Bihar has been chosen because the state has one of the largest electorates in the world with more than 72 million electorates. ओके, जो आपके 72 मिलियन इलेक्टरेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में हैं, तो इसीलिए उसको एज स्टेट सिलेक्ट किया था जहाँ पे ये प्रोग्राम कराया जाएगा. नाउ द टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि आपकी गुरुवयूर केरला में अंडर प्रसाद स्कीम लॉन्च किया गया. इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. Okay, inaugurated this tourist facilitation center facility constructed under the project development of Guruvayur, Kerala. So you have to remember this name, that this Guruvayur, Kerala जो है आपका, it has been launched under प्रसाद स्कीम. So let's understand what is प्रसाद स्कीम. जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसी ने इसको भी लॉन्च किया. प्रसाद इज़ बेसिकली द एक्रोनिम एंड द फुल फॉर्म इज़ पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव. ये आपके प्रसाद का फुल फॉर्म है. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो प्रसाद स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव ये है, जो आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है पिलग्रिम साइट्स पे, ओके, जिससे कि जो टूरिस्ट हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, तो उसी के लिए ये सेंट्रली फंडेड एक स्कीम चलाई जाती है जिसको हम प्रसाद स्कीम बोलते हैं. तो उसके अंडर 41 रिलीजियस साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट इन द कंट्री. Okay, Ministry of Tourism provides financial assistance to various states and union territories for aesthetic development and rejuvenation of these pilgrim sites. आपका जो गुरुवयूर प्रोजेक्ट है वो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. इसको आपको पता ही है, प्रसाद स्कीम के अंडर चलाया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको हैंडल कर रही है. इसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 45.36 करोड़ है. ओके, सो it has been launched in 2017. The component, which is tourist facilitation center, it has been successfully completed with the cost of rupees 11.57 crores. Other components of the project are CCTV networks, infrastructure, tourist amenities center and multi-level car parking. तो ये जो आपके टूरिस्ट हैं उनके लिए जो उनका विज़िट है उसको और ज़्यादा कन्वीनियंट और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, एंड ऑल्सो टू इंस्टॉल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ पिलग्रिमेज साइट्स पे आपके रखने के लिए, जैसे कि जो आपका CCTV नेटवर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिस्ट अमेनिटी सेंटर है एंड मल्टी लेवल कार पार्किंग है. तो ये कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जिनको इंस्टॉल किया है जिससे कि टूरिज़्म आपका इन्हेंस हो. Okay, so Prime Minister chaired the virtual global investor round table. तो विगिर कॉन्फ्रेंस को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने रिसेंटली it has been chaired by him and it has aimed at attracting investment in the country. Okay, so India has companies ranking high on environment, social and governance scores. ओके, जो हमारी इंडिया की कंपनीज हैं उनको EGS स्कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है. सो दैट इज़ द पॉइंट विच वुड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडिया. सो इंडिया हैज़ एन एम्बिशियस प्लान टू इन्वेस्ट $1.5 ट्रिलियन अंडर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन. तो जो आपकी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ओके, उसमें इंडिया ने प्लान किया है दैट इट वुड बी इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड 13% राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन द लास्ट 5 months कंपेयर टू द लास्ट ईयर. तो आपका जो लास्ट 5 month है तब से ही FDI में जो हमारी बढ़त है इट हैज़ बीन 13%, जो आपके लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है. ओके, सो दैट इज़ द पॉइंट हियर. नाउ द कॉन्फ्रेंस, जो आपकी वीगर कॉन्फ्रेंस है उसमें फोकस किया गया है दैट इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड द गवर्नमेंट्स विजन फॉर मेकिंग द कंट्री ऑफ
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन बनाने के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज की बनाने के लिए इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन द इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक, okay, the structural reforms whatever is related to the infrastructure and the government's vision. Okay, so that is the point here. It was organized by Ministry of Finance and the National Investment and Infrastructure Fund. आपको पता ही है जो हमारा NIIF है वो ही ये सारे इन्वेस्टमेंट के काम करता है. Okay, so government issued liberalized guidelines for other service provider industry. This is another news, and here we have known that what is BPO. तो आपका जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है और आपका ITES है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस सेक्टर, ये जो सेक्टर हैं ये दे हैव रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑफ द BPO इंडस्ट्री. अभी आपका जो BPO इंडस्ट्री और ITES होता है ये बेसिकली होता है, देखिए BPO तो होता है कि आप थर्ड पार्टी तक, जो आपके दो लोग हैं उसके अलावा जो थर्ड पार्टी है आप उस तक कितना आउटसोर्स कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज BPO. एंड ITES इज द अप्रोचेस एंड प्रोसेसेस which use information technology to enhance an organization's efficiency. Okay, so that is ITES. तो जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं अदर सर्विस प्रोवाइडर ये इंडस्ट्री से रिलेटेड. सो द फैक्ट्स ऑफ दोज गाइडलाइंस आर दैट नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर सेंटर्स इन इंडिया. ठीक है, अब आपको वो काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो आपकी BPO इंडस्ट्री है, इट इज़ एंगेज्ड इन डेटा रिलेटेड वर्क हैव बीन टेकन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ OSP registration regulations. Okay, so companies now can adopt work from home and work from anywhere policies. Okay, so जो companies हैं वो अब adopt कर सकती हैं that they want the employers to work from home or work from anywhere. In addition, requirements such as deposit of bank guarantees, requirement of static IPs, frequent reporting obligations, publication of network diagram, penal provisions, etc. have also been removed. So that is about the BPO and ITES. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship asked states to expand new age skills. आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं उन्होंने ये बोला है दैट द न्यू एज स्किल्स शुड बी एक्सपैंडेड. ओके, जो न्यू एज कोर्सेज हैं ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको एक्सपैंड करना चाहिए, और इसलिए एक्सपैंड करना चाहिए सो दैट दे कैन कीप इन पेस विद द चेंजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी. आपको पता है दैट दिस इज़ द एरा वेयर डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ रूलिंग. ओके, दिस इज़ द डिजिटल टेक्नोलॉजी एज. सो इंक्रीज द फुटप्रिंट्स ऑफ इंडियन वर्कर्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स. हमें ज़्यादा से ज़्यादा घुसना है इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट्स में सो दैट वी कैन लर्न द टेक्नोलॉजी, वी कैन लर्न द यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड वी कैन हेल्प आवर कंट्री इन वर्किंग ऑन दोज टेक्नोलॉजीज़. तो ये कहना है हमारे जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग हैं, द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MSDE फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वोकेशनल training across the country has introduced 13 national skills qualification framework. ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ काम किए हैं जो आपके NSQF है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, जहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे स्किल्स न्यू एज कोर्सेज कराए जाएंगे एंड स्किल्स सिखाई जाएंगी. ओके, ट्रेनिंग दी जाएगी. तो वो जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है इट वेरीज फ्रॉम 6 months to 2 years. ओके, यू वुड बी ट्रेंड देयर एंड इट इंक्लूड्स कोर्सेज लाइक डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स and smart agriculture. So these are some of the technologies which are used by the developed countries, and so they are so ahead in the digital technology. Okay, जो आपका NPPA है it is playing crucial role in making cancer drugs affordable. जो आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है तो उसने अभी क्या किया है, जो कैंसर ड्रग्स हैं उनको लो कॉस्ट में बनाने के लिए they have run this particular
प्रोजेक्ट जिसमें उनको सक्सेस हासिल हुई है, एंड by using that particular project they have reduced the price of the drugs which are used in the treatment of cancer up to 90%. So this is a huge success. Okay, the step resulted in saving of about 1000 crore annually to cancer patients. तो आपके जो NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPA regulates the prices of all drugs as per the drug price controller order. तो आपका जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है 2013 का, उसी के अंडर आपका NPPA है, वो जितने भी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनके प्राइसेस को कंट्रोल करता है. इट फिक्सेस द सीलिंग प्राइस ऑफ स्केड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस विच आर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर 2013. ओके, सो आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 7th of October. ओके, तो अकॉर्डिंग टू WHO जो कैंसर है आपका, इट इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली. तो आपका जो 2018 में देर वर अप्रॉक्सीमेटली 18 million cases globally, of which 1.5 million were in India alone. Okay, there were around 0.8 million cancer deaths in India in 2018. ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, WHO की रिपोर्ट है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है that India, okay, it would be having the numbers of new cases are estimated to double. Okay, it would be having the double of the cases which it has right now by 2014. So this is a big concern for India. IFFCO बाजार पार्टनर्स विद SBI योनो कृषि ऐप. तो आपका जो IFFCO है, IFFCO आपका होता है इन, ओके, व्हाट इज IFFCO? लेट्स write it down so that you don't forget. This is the, this works under government. There's a PSU, and IFFCO is Indian Farmers Fertilizers Cooperative. So this is it. Okay, it is IFFCO. तो ये PSU है जो कि काम करता है आपके फर्टिलाइज़र्स में, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मार्केटिंग होती है, उसको हैंडल करता है आपका IFFCO. सो रिसेंटली IFFCO बाज़ार, ओके, ये उसकी वेबसाइट का नाम है. दिस इज़ द ई-कॉमर्स आर्म ऑफ IFFCO. इट हैज़ अनाउंस्ड इट्स इंटीग्रेशन विद SBI योनो. ओके, योनो आपका, यू ओनली नीड वन. कृषि, विच इज़ द डेडिकेटेड पोर्टल केटरिंग टू द फार्मर्स नीड. हैज़ल, अब इसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, आप SBI से डायरेक्टली पेमेंट कर पाएंगे फॉर बाइंग दिस प्रोडक्ट्स ऑफ IFFCO. ओके, इज़ अ कॉम्बिनेशन विच एम्स टू ड्राइव द डिजिटल सेल्स. अब इसका मतलब ये है ना कि जो आपका योनो है वो आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन का एक तरीका है. तो आप डायरेक्टली योनो के थ्रू IFFCO से कनेक्ट कर पाएंगे, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद पाएंगे डिजिटली. सो दैट इज़ द टारगेट बिहाइंड दिस. Now, what is IFFCO Bazaar? One of the fast growing agriculture based e-commerce portals in India promoted by IFFCO. ठीक है, तो आपका it has been available in 12 Indian languages and promises free home delivery pan India. तो ये फ्री होम डिलीवरी करते हैं आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चर बेस्ड ई-कॉमर्स पोर्टल्स. इट ऑल्सो ऑपरेट्स 1200 plus stores in 26 states across India. Okay, so that is the point. Now government weeds out 4.39 crore bogus ration cards under आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर. गवर्नमेंट ने 4.39 करोड़ फेक राशन कार्ड्स, ओके, जो कि एलिजिबल नहीं हैं, इतने ज़्यादा अमाउंट में राशन कार्ड्स को बाहर निकाला है. So according to official data, government has been able to weed out as many, this much 4.39 crore ineligible or bogus ration cards
between 2013 and 2020 as part of its efforts to rightful targeting. अब देखिए गवर्नमेंट को ये इसलिए करना पड़ा बिकॉज द पीपल हु एक्चुअली रिक्वायर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उनको सच में ज़रूरत है. द राइटफुल बेनिफिशियरीज हैव नॉट बीन टारगेटेड, ऑल्दो दे हैव बीन टारगेटेड, बट there were some reasons because of which these fake people, okay, who are not eligible for this scheme, they were using up the this card, ration card. तो ये आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर 2013 में बना है. गवर्नमेंट जो है उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लेकर आया था. तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था दैट द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. तो सीधी सी बात करें कि हम यहाँ पे कि लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडाइज प्राइसेस पे, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है वो अफोर्ड कर पाए, उन प्राइसेस पर लोगों को गेहूं चावल प्रोवाइड किया जाएगा. सो एज मैनी एज 81.35 crore इंडियंस, नियरली 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर कवर्ड अंडर NFSA. तो ये आप देखिए इंडिया के लिए कितनी ही अजीब बात है कि इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन, ओके, 2/3 पॉपुलेशन इज कवर्ड अंडर दिस स्कीम. दैट मीन्स 2/3 पॉपुलेशन कैनॉट इवन अफोर्ड this basic life cycle, okay, the needs of the life cycle. So eligible persons will be entitled to receive 5 kgs of food grains per person per month at subsidized prices of 3 to 1 per kg of rice, wheat, coarse grains. ओके, सो उनको क्या दिया जाएगा, 5 kg राशन दिया जाएगा, सब्सिडाइज प्राइसेस 3 to 1. ओके, सो अंत्योदय अन्य योजना हाउसहोल्ड्स विच कंस्टिट्यूट द प्योरेस्ट ऑफ द पुअर विल continue to receive 35 kgs of food grains per household per month. तो आपका जो AAI, ओके, अंत्योदय अन्न योजना है, वो इंश्योर करेगा दैट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर दे विल रिसीव 35 kgs of food grain per household and per month. Okay, so that is the point. Now this is another article in which we are talking that rupees 42,740 crore would be this would be disbursed to this 20,60,220 defense forces pensioners under OROP. अब ये सबसे पहले समझिए कि ये OROP क्या है. ये है 1 rank 1 pension. तो इस स्कीम के अंडर यूनिफॉर्म पेंशन इज पेड टू द डिफेंस पर्सनल, ओके, जो कि सेम रैंक से रिटायर करते हैं और जिनका सर्विस टर्म भी सेम था, ओके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट. ओके, सो दैट इज़ द पॉइंट हियर. अब ऐसा नहीं है कि if somebody is retiring on this and somebody is retiring on that date and that year, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा. अब आपकी जो रैंक है and also the length of the service that you have provided to a particular this sector, जो डिफेंस सेक्टर है उसमें आपने सर्विस कितने सालों के लिए प्रोवाइड की है एंड आपने कौन सी रैंक पे रिटायर किया है, उसी के बेसिस पर सबको सेम पेंशन दी जाएगी. तो उसी की बात हो रही है दैट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी वुड बी डिसबर्स्ड, जो आपका 1 रैंक OROP 1 रैंक 1 पेंशन 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया था. ओके, तो ये सरकार के एक्सपेंडिचर की बात करी गई है कि कितना खर्च होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली. सो हेल्थ मिनिस्ट्रीज टेलीमेडिसिन सर्विस ई-संजीवनी कंप्लीट 7 lakh कंसल्टेशंस. जो आपकी ई-संजीवनी क्या है, आपको याद होगा कि कोरोना के टाइम पर इसको लाया गया था. इसमें 1-to-1 कनेक्शन होता है थ्रू वीडियो कॉल एंड उस पर आप दिस मेडिकल कंसल्टेशंस आर प्रोवाइडेड. ओके, ई-संजीवनी एक ऐसी ही पहल है. सो रिसेंटली ई-संजीवनी द नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस सेट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ कंप्लीटेड 7 lakh कंसल्टेशन.
तो इसमें 7 लाख कंसल्टेशंस पूरे हो गए विद ओवर 10,000 कंसल्टेशंस बीइंग रिकॉर्डेड ऑन ई संजीवनी पर डे। ठीक है, आपके डेली के 10,000 कंसल्टेशंस it has been recorded. So it is shaping into the largest OPD services set up in the country. ओके, तो ओपीडी आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिन लोगों के ज़्यादा सीरियस केसेस नहीं होते हैं या फिर जो एज पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर नहीं रखे जाते हैं, द इंटेंसिव केयर यूनिट्स में नहीं ले जाए जाते हैं, तो उनको ओपीडी में रखा जाता है जिनको माइनर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। सो वो आपका EOPD है। ओके, ई संजीवनी। तमिलनाडु फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड केरला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसल्टेशन आया अंडर ई संजीवनी, थ्रू ई संजीवनी। व्हाट इज़ ई संजीवनी? इट इज़ अ वेब बेस्ड कॉम्प्रहेंसिव टेलीमेडिसिन सोल्यूशन। मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि इसमें वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू दो लोगों के बीच में कंसल्टेशंस दिए जाते हैं। तो ये पहला जो है वो डॉक्टर टू डॉक्टर दिया जाता है, जिसको ई संजीवनी बोलते हैं। दूसरा है वो पेशेंट टू डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसको ई संजीवनी OPD बोलते हैं। तो ये टेली कंसल्टेशंस इसके थ्रू दिए जाते हैं। इट हैज़ मेड इट कन्वीनियंट फॉर पीपल टू अवेल हेल्थ सर्विसेज विदाउट ट्रैवल। ओके, so more than 11 lakh MSMEs have successfully registered on MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ओके, तो ये आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में हमने बात करी है दैट इट इज़ अबाउट द MSMEs एंड दो स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस जिनके लिए 11 लाख रजिस्ट्रेशन करे गए हैं। So as per the analysis of registration till October 2020, जो ट्रेंड था वो इस तरीके से था that 3.72 lakh enterprises have registered under manufacturing category, whereas 6.31 lakh enterprises under service sector. ओके, तो शेयर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, अब इसमें शेयर बता रहे हैं कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनका शेयर है 93.17%, स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनका है 5.62% एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनका शेयर है 1.21%। ओके, सो जो मेल हैं इसमें और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी कंपैरिजन किया गया है एज कंपेयर टू द परसेंटेज कि वो कितने प्रेजेंट है। दो दिव्यांग जन हैं एज एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव ऑल्सो कम अप। सो द 5 लीडिंग स्टेट्स ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन आर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। ओके, नाउ दिस इज अटल इनोवेशन मिशन। ये आपने AIM, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके में भी कई सारे AIM की तरफ से प्रोजेक्ट्स आते होंगे एंड ऑल्सो देर आर स्कीम्स, तो प्रोग्राम्स काफ़ी सारे लॉन्च किए गए हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस। तो अभी जो AIM है उसने सीरस रशिया की एक फर्म है, तो उसके साथ मिलकर AIM सीरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 को लॉन्च किया है। So they have jointly launched this program. It is a 14-day virtual program for Indian and Russian school children. ये आपने सुना ही होगा कि जो रशिया है और इंडिया के स्कूल चिल्ड्रन है उनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया है। It is the first Indo-Russian bilateral youth innovation initiative which seeks to develop technological solution both web-based and mobile-based for two countries. Okay, so 48 students and 16 educators and mentors will create 8 virtual products and mobile applications addressing global challenges in the wake of COVID-19 pandemic. तो मैंने आपको बोला था कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स AIM के थ्रू चलाए जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ अटल टिंकरिंग लैब्स। उसमें क्या किया जाएगा दैट द प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट इन द स्कूल्स दे वुड बी लॉन्च्ड। ओके, देन अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, तो इसमें आपके जो स्टार्टअप्स हैं, ओके, वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स हैं उनको एड प्रोवाइड किया जाएगा, फिनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, एडिंग अ न्यू डायमेंशन टू द इंक्यूबेटर मॉडल। ओके, जो अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस है उसके थ्रू क्या किया जाएगा दैट प्रोडक्ट इनोवेशंस वुड बी ब्रॉट अप एंड अलाइन देम टू द नीड्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज।
मेंटर इंडिया कैंपेन है अ नेशनल मेंटर नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिक सेक्टर। ओके, तो आपको नेशनल मेंटर नेटवर्क जो है उसको पब्लिक सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करा के, ओके, कॉरपोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस को भी साथ में लेके द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस मिशन वुड बी फुलफिल्ड। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है वही है आपके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको जो टीयर 1 और टीयर 2 की टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, ओके, वहाँ पे टू स्टिमुलेट द कम्युनिटी। ओके, सो अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज अराइज जो है आपका, इट इज़ टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन द MSME इंडस्ट्री। ओके, सो दिस इज़ अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले भी बताया दैट व्हाट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये इंडिया में जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है, ओके, जो मार्केट है वहाँ पे इंश्योर करती है दैट हेल्दी कंपटीशन इज़ गोइंग ऑन एंड ऑल्सो देर आर नो मेजर effects on the people, on the consumers of the competition that is going on between the large firms। तो ये वही इंश्योर करती है। तो रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज अ वर्चुअल वर्कशॉप ऑफ ब्रिक्स कंपटीशन एजेंसीज ऑन कंपटीशन इश्यूज इन ऑटोमोटिव सेक्टर। तो आपका जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वहाँ पे क्या किया गया है कि जो ब्रिक्स है, ओके, उसने वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई हैं एंड द CCI हैज़ हेल्प्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द वर्चुअल वर्कशॉप्स। ओके, जो आपका ऑटोमोटिव सेक्टर है उसमें वर्कशॉप्स लगाई गई हैं। सो CCI इज़ द प्रोजेक्ट को लीड ऑफ ऑटोमोटिव वर्किंग ग्रुप अलॉन्ग विथ कंपटीशन कमीशन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स आपको जो मैंने बताया दैट ब्रिक्स इज़ द दिस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इनको मिला के, तो अब उसमें से जो साउथ अफ्रीका की कंट्री है वहाँ का कंपटीशन कमीशन साउथ अफ्रीका का और हमारे इंडिया का कंपटीशन कमीशन ने मिलकर ऑटोमोटिव सेक्टर में आपके वर्कशॉप्स लगवाए हैं। नाउ ब्रिक्स कंपटीशन एजेंसीज हैव साइंड अ MOU। Okay, it has signed an MOU on cooperation in the field of competition law and policy। okay, so ब्रिक्स है उसने जो कंपटीशन लॉ है और पॉलिसीज़ को लेकर भी MOU साइन किया है। इन अकॉर्डेंस विद द MOU the working groups had been constituted on important industries या sectors which is pharmaceuticals, food, automotive and digital markets। Okay, so what is CCI? That it is a statutory body of Government of India responsible for enforcing Competition Act in 2002। Okay, so headquarters is in Delhi। So I guess this was all about the articles of November month, and we'll be continuing with some more articles in the other part of the video. I hope you all are liking the video and also keep learning with us. Thank you so much.